Good morning, dear students. Once again, we will start with ray optics and optical instruments. So, beta, last lecture, yesterday, we have studied about the lens maker's formula. So, I have already told that in lens maker formula, you have to keep in mind two things: refraction through the spherical surface. And yesterday only we have studied two formula. N2 upon V minus N1 upon U is equal to N2 minus N1 upon R, and then N1 upon V minus N2 upon U is equal to N1 minus N2 upon R. Depending on the situation, we will use that, and by using these two formulae, we have constructed lens maker's formula. So, what is the lens maker's formula? I have already told you. 1 by F is equal to N21 minus 1 into 1 upon R1 minus 1 upon R2. So, beta, this formula can be applied in different ways as per the need, as per how the questions are asked. This formula can be utilized. Are you getting my point? So, in this, you have to keep in mind, I told you about everything about the object. So, today we will put a flash on that. So, what is the real object, what is virtual object, that we will see. Okay. So, already we have studied about the refraction through convex spherical surface, concave spherical surface, that all we have studied. Now we will study about the yesterday what I have told you about the virtual object और वह कैसे बनता है. तो वो समझने के बाद you will have the idea about the what we can say for the lens maker formula two surfaces. Okay, so we'll go for that. Okay, so real object, virtual object, okay, real image, real object or virtual object. So we will deal with all cases. So already I have told you these are called as converging rays. These are called as diverging rays. So beta, when you come across the converging rays, you have to consider that they will meet somewhere at a point, and that you will consider as a virtual object. And here actually they are coming from here, so you can consider this to be real object. So O is the real object and O dash is the virtual object. तो यहाँ पे कैसा आएगा बेटा? नंबर 1, diverging rays are going through the convex lens. So I have already told you, suppose this is the focus, so actually they must go like this. थोड़ा सा मैं उसको ठीक कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक बनना चाहिए वो. ओके, एकदम सिंपल है, डोंट टेक एनी टेंशन, वेरी सिंपल इट इज, बट यू मस्ट नो दैट एक्चुअली व्हाट इट इज. ओके, तो ये मेरा लेंस बन गया. And suppose these rays are going like this, they are not parallel, na? You will find they are not parallel. So if you take their path, तो यहाँ पे as the rays are converging, as rays are converging, क्या बन जाएगा? We cannot get object at left. ये rays converging है, इसलिए हम object left को नहीं अपने को मिल सकता. तो object कहाँ मिला? जहाँ पे वो इकट्ठा हो रहे हैं वो बन गया मेरा object, और वो actual नहीं है, वो meet हो जाएंगे, तो इसलिए उसको बोलेंगे virtual ऑब्जेक्ट. तो ये बन गया अपना O डैश, ये बन गया अपना वर्चुअल ऑब्जेक्ट.
तो इसका इमेज कैसे बन जाएगा बेटा? तो इमेज देखने के लिए एकदम सिंपल है। इमेज कैसे बन जाएगा? यहां से the rays will still converge because convex lens is there. तो थोड़ा सा यहाँ से वो ऐसे हो जाएंगे and they will form a image, but image will be real. यहाँ पे इमेज बन जाएगा रियल इमेज। तो एक केस बन गया। थोड़ा सा दूसरा केस भी कंसिडर करते हैं। दूसरा केस में क्या हो जाएगा? सपोज कॉन्केव लेंस है अपना। कॉन्केव लेंस के सामने इफ आई एम गेटिंग द सेम सिनारियो, व्हाट विल हैपन इन द केस ऑफ कॉन्केव लेंस? तो यहाँ पे मेरा फोकस ये बन गया प्रिंसिपल एक्सिस। ये कॉन्केव लेंस मैंने आई हैव फॉर्म दैट कॉन्केव लेंस एंड नाउ ये आपको ध्यान में रखना है, आपको नोट डाउन भी करना है। अगर इफ द लेंस इज नॉट देयर, दे विल डायरेक्टली गो एंड मीट समवेयर। ओके, ये चीज एकदम इंपॉर्टेंट है, समझने में एकदम डिफिकल्ट है, एक्चुअली वेरी इजी है। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बट द सेम टाइम वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। मीन्स if you are knowing well about that, it's very easy. If you are not knowing anything, it is very difficult. Okay, तो ये बन गया अपना अगेन वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ओ डैश को मैं क्या बोल सकता हूँ? ओ डैश वर्चुअल ऑब्जेक्ट। नाउ बेटा these two rays they will diverge, they will get diverge, मतलब यहाँ पे पीछे नहीं आएंगे, वो इस पॉइंट के पीछे नहीं आएंगे, थोड़ा सा आगे ही जाएंगे। यहां पे आपको उसका इमेज मिलेगा। सो वी हैव स्टडीड बोथ द केसेस। केस 1, कॉन्वर्जिंग रेज कमिंग अक्रॉस अ कॉन्वेक्स लेंस, converging rays coming across concave lens। तो यहाँ पे ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे इस केस में इमेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट के पीछे बनता है, इस केस में इमेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट के आगे बनता है। इफ इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस then the image will be formed before the virtual object, and if it is a concave lens the image will be formed after the virtual object। ओके, हो गया? ठीक है, आगे के लिए जाते हैं। ओके, पैरेलल रेज है तो अपना वर्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। फॉर पैरेलल रेज वी विल नॉट कंसीडर वर्चुअल ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑब्जेक्ट विल बी देयर। ओके, थर्ड केस कॉन्वेक्स लेंस ही लेते हैं। converging rays, it means that they will appear to come from some object। so ये बन गया O real object, ये बन गया real object। but if you keenly observe here they will somewhere diverge, लेकिन डाइवर्ज होने के बाद भी आई एम फाइंडिंग दैट हाँ ये तो उसका ओरिजिनल पाथ था, ये ओरिजिनल पाथ था, तो डाइवर्ज नहीं सॉरी कॉन्वर्ज हो गया, लेकिन यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन कतई पॉसिबल नहीं होगा। वाई बेटा? ऑफ कोर्स क्योंकि मैं फिर से निकाल के दिखाता हूँ, यहाँ पे जगह कम है तो यहाँ पे ठीक से आपको मैं निकाल के दिखाता हूँ। बड़ा वाला डायग्राम बनाते हैं, बड़ा वाला, तो आपको समझ में आएगा। ये मेरा लेंस है बेटा। ओके, तो यहां पे मैंने क्या किया? आई हैव टेकन दीज रेज। ओके, सपोज दीज रेज आई हैव टेकन, सो दिस, इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे रियल ऑब्जेक्ट। बन गया रियल ऑब्जेक्ट। तो ये कैसे, अगर लेंस नहीं है तो रे कैसे चलना चाहिए? ऐसे, ठीक से ऐसे चलना चाहिए, ये भी ऐसे चलना चाहिए, बट द लेंस इज देयर, दैट्स व्हाई इट विल बेंड। कैसे बेंड हो जाएगा? थोड़ा यहाँ से मतलब पूरा लेंस के अंदर से थोड़ा सा, एक्चुअली कैसे होगा? इट विल बेंड रेयर टू डेंसर, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा और बाद में ऐसा नहीं चलेगा, थोड़ा सा
ऐसे जाएगा। तो थोड़ा सा इसमें भी अंतर है। तो हम बोल सकते हैं कि एक्चुअली जाने के लिए थिन लेंस लेते हैं तो थोड़ा सा कहीं तो ऐसे जाएगा और ये थोड़ा सा ऐसे जाएगा, बट स्टिल दे आर नॉट मीटिंग, दे आर लाइक दैट, दे विल नॉट मीट एट द राइट साइड। तो इसको मैंने प्रोड्यूस किया, अगर इसको मैंने अगर प्रोड्यूस किया पीछे, तो यहां पे इमेज मिलेगा आई डैश, ये मिलेगा वर्चुअल इमेज। ये क्या मिल जाएगा आपको? वर्चुअल इमेज। तो आपको तीसरी केस मैंने दिखाया है, समझ गए बेटा? ओके। और यही केस अगर कॉन्केव लेंस के साथ हो जाए, the same scenario, if it will happen with the concave lens, then what will happen, that we have to see. Okay, number 4 we will take concave lens। इसके साथ भी सेम करते हैं। ये बन गया कॉन्केव लेंस, ये बन गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये बन गया अपना रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट में कंसीडर कर रहा हूं, एक्चुअली ऐसे जाना चाहिए, लेकिन अभी क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग लेंस है तो थोड़ा डाइवर्ज होगा ऐसा, तो ये पीछे आएगा, है ना बेटा? तो ऑब्जेक्ट रियल है, रियल ऑब्जेक्ट, लेकिन इमेज कैसा? वर्चुअल इमेज। ओके ओके। तो एक के बाद एक हम पूरा सिनेरियो आपको टैबलेट करवा के देते हैं। तो आज का दिन हम पूरा उसमें वो टेबल बना के उसको तैयार करते हैं, ठीक है बेटा? तो वन बाय वन वी विल मेक द टेबल। सो मेरे साथ आई रिक्वेस्ट यू टू प्रिपेयर वन टेबल विथ मी। ओके, तो मैंने पहले क्या लेते हैं, केस। पहला ये लेते हैं केस। ओके, तो पीछे लिखता हूं। ओके, तो केस लिखने का जरूरत नहीं है, पहले लिखते हैं। हाँ ठीक है, केस ही लिखते हैं, बराबर है बराबर है, केस ही लिखना जरूरी है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं। हाँ, रियल वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स इमेजेस टेबल। तो कहाँ पे रियल ऑब्जेक्ट होगा, कहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, कहाँ पे रियल इमेज होगा, कहाँ पे वर्चुअल इमेज होगा, ये सब इस टेबल में हम पूरा करेंगे। तो यहाँ पे एक लाइन बनाता हूँ और हम टेबल बनाते हैं। आई विल सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन, बराबर? तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ केस। कौन सा केस है वो करते हैं यहाँ पे। ओके, तो इतना जगह मैं केस के लिए छोड़ता हूँ। ऑब्जेक्ट, तो ओ लिखता हूं, इमेज आई लिखता हूं, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, आई फॉर इमेज। बन गया। अभी पूरा केस फिर से हम लिखते हैं। ओके, केस विथ डायग्राम। पहले वाला केस पैरेलल रेज। अगर पैरेलल रेज है और मेरा कॉन्वेक्स लेंस है, तो मैंने बताया आपको, अगर पैरेलल रेज है और मेरा कॉन्वेक्स लेंस है तो मेरा एक्चुअल इमेज बन जाएगा और ऑब्जेक्ट भी मेरा बन जाएगा। तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा रियल एट फार डिस्टेंस बन गया। अगर पैरेलल रेज है तो उसमें कॉन्वेक्स लेंस है तो ऑब्जेक्ट एट फार डिस्टेंस, लेकिन ऑब्जेक्ट, सॉरी रीड लिखा मैंने, रियल बन जाएगा। इमेज विल बी ऑल्सो रियल
फोकस। बन गया? तो ये पहला केस बन गया। इसमें दूसरा केस आई विल टेक फॉर कॉन्केव लेंस। सेकंड केस विल बी फॉर कॉन्केव लेंस। यहां पे भी अपना ऑब्जेक्ट बन गया एंड नाउ द रेज विल डाइवर्ज, है ना? समवेयर हियर दे विल मीट। तो अभी इमेज जो है ये अपना रियल नहीं है, इमेज वर्चुअल है, लेकिन ऑब्जेक्ट रियल है। तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा फिर से? रियल एट फार डिस्टेंस इमेज विल बी वर्चुअल। ओके, एट एफ, ये F2 बन जाएगा, ये F1 बन जाएगा। समझ गए बेटा? सो ये केस वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे ये हो गया अपना एक। ओके, इसके बाद में आई विल सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन। इसको नोट डाउन करो। इसको करने के बाद हम आगे जाएंगे। आगे में फिर से हम बनाते हैं अपना स्ट्रक्चर। यहां पे बनाते हैं दैट वी विल कंस्ट्रक्ट फॉर converging and diverging rays, converging and diverging rays। ओके, तो यहां पे लिखता हूं केस विथ डायग्राम। थोड़ा बड़ा लिखता हूं यहां पे बोलता हूं ऑब्जेक्ट। यहां पे अपना ऑब्जेक्ट आएगा और यहां पे इमेज आएगा। ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ये दो बन गया कॉन्वर्जिंग रेज। अगर कॉन्वर्जिंग रेज है तो कैसे बन जाएगा वो देखते हैं अभी। तो पहले कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं। ये ऐसे है कॉन्वर्जिंग, तो मतलब ये यहां पे चला जाएगा। ओके, एक्चुअल ना, और बीच में लेंस है इसलिए वो थोड़ा क्या हो जाएगा, स्टिल कॉन्वर्ज हो जाएगा। तो ऐसे बन जाएगा। तो ये बन जाएगा O डैश, ये बनेगा I। सो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? वर्चुअल। ऑन अदर साइड, ये इंपॉर्टेंट है। इमेज तो वही बनता है, लेकिन ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल होगा और ऑन अदर साइड इमेज विल बी रियल, क्योंकि वो एक्चुअली मीट हो रहा है। इमेज विल बी रियल। तो जो रियल है यहां पे देखो, यहां पे मैंने उसको डॉट नहीं किया है। जो रियल है उसको मैंने डॉट नहीं किया है, तो ये आई बन गया। ऑब्जेक्ट खाली अपना ये बन गया। अभी दूसरा केस लेते हैं, दूसरा सिनेरियो कॉन्केव लेंस के लिए। तो कॉन्केव लेंस के लिए क्या बनेगा? सेम, मेरा ऑब्जेक्ट लेता हूं मैं ऐसा। तो समवेयर हियर दे विल से मीट। ये ऑब्जेक्ट बन गया, इसको O डैश बोलता हूं। ऑब्जेक्ट तो वैसे ही चलेगा। ऑब्जेक्ट लेते समय मैंने क्या ध्यान में रखा है? व्हाट आई हैव kept in mind while taking the object, that I will consider that there is no lens where the object rays are actually going. That will be my virtual object. Now the image, they are diverging na, so image will be ahead somewhere, so image will be somewhere here. लेकिन इमेज कैसा बनेगा? रियल बनेगा। सो ऑब्जेक्ट विल बी वर्चुअल, ऑन अदर साइड इमेज विल बी रियल। तो बेटा यहां पे अगर ऑब्जेक्ट कॉन्वर्जिंग है तो इंपॉर्टेंट क्या बनेगा? इमेज, हाँ, इमेज बिफोर ऑब्जेक्ट। ये आपको ध्यान में रखना है। इमेज बिफोर ऑब्जेक्ट। यहां पे क्या बन जाएगा आपका? यहां पे जो बन जाएगा इमेज आफ्टर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। वॉट एवर योर इमेज विल बी फॉर्म, that will be after the object. यहाँ पे देखो, so I will suggest you to note this
दिस ऑल्सो टू नोट डाउन. ओके, तो इसको नोट डाउन करो. तब तक मैं यहाँ का ये रब करके आगे वाला केस आपको दिखाता हूँ. बन गया, तो इसको मैं हटा देता हूँ. आई जस्ट रब दिस ऑल. इसको भी रब कर देता हूँ. ओके, नाउ व्हाट वी विल लर्न दैट अगर मेरा रेज कॉन्वर्जिंग नहीं है, डाइवर्जिंग है, ये इसके उल्टा हो जाएगा, इसके उल्टा हो जाएगा. तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा निकाल के लिखता हूँ, है ना बेटा. इसको बड़ा करता हूँ, थोड़ा सा आगे लिखता हूँ. ओके, और यहाँ तक मैं उसको कंटिन्यू करता हूँ. तो ये मिल जाएगा इमेज और ये मिल जाएगा ऑब्जेक्ट. बस हो गया. तो यहाँ पे क्या मिलेगा? नंबर 3, डाइवर्जिंग रेज. If diverging rays are coming across the convex lens, तो पहले कॉन्वेक्स लेते हैं. ओके, डाइवर्जिंग रेज मतलब मेरा जो मैंने पहले लिखा था वो ये ऐसा. यहां पे क्या हुआ बेटा? यहां पे ऑब्जेक्ट रियल बन गया एक्चुअल. तो ये थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए था, ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन इट विल बेंड. ये कॉन्वर्ज हो जाएगा. लेंस कौन सा है? लेंस है कॉन्वेक्स, तो रेज विल कॉन्वर्ज. तो थोड़ा वो कॉन्वर्ज हो जाएगा. अगर कॉन्वर्ज होता है थोड़ा सा, देन व्हाट वी विल गेट इमेज टू बी वर्चुअल, लेकिन बिहाइंड ऑब्जेक्ट. इमेज क्या मिल जाएगा? वर्चुअल मिल जाएगा, आई डैश. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इमेज. ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? रियल. पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट. ये ध्यान में रखना है आपको. सब चीज आपको ठीक से नोट डाउन करना है बेटा, क्योंकि ये चीज मैं सिखा रहा हूँ. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मच मोर इम्पॉर्टेंट. इसको आपने भूलना नहीं है, कतई भूलना नहीं है. रियल. इमेज क्या मिल जाएगा? वर्चुअल. बिहाइंड ऑब्जेक्ट. ओके, अभी तीसरा केस लेते. तीसरा मतलब इसमें सेकंड केस, तीसरा नहीं है. सेम चीज, सेम वी विल डू फॉर से कॉन्केव लेंस. तो कॉन्केव के लिए क्या हो जाएगा? फिर से मैं एक ऑब्जेक्ट निकालता हूं. ये ऑब्जेक्ट बन गया. एक्चुअली ऐसे जाना चाहिए था, से स्ट्रेट वे में. तो ये थोड़ा सा डाइवर्ज हो गया यहाँ से भी. तो यहाँ पे इमेज मिलेगा यहाँ पे. तो इमेज विल बी वर्चुअल. इमेज यहाँ पे आफ्टर ऑब्जेक्ट आएगा. तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट कैसा बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा रियल. पॉइंट ऑब्जेक्ट. इमेज विल बी वर्चुअल. आफ्टर ऑब्जेक्ट. Are you getting my point? So this was a very important case. I think all the cases I have explained in front of you. These cases are very important. आपको ध्यान में रखना है. ये all cases आपको problems solve करने के लिए they are very essential and they are very important. So I will suggest you to note down these all cases. पहले मैंने जो एक केस दिया था, इसके बाद ये और इसके बाद ये. So I will suggest you to note this down. Then we'll go for the next point. हो गया बेटा. इसके बाद हम आगे जाते हैं. ये पार्ट 10th में भी मैंने सिखाया है, लेकिन फिर से आपको बोल के रखता हूं क्योंकि दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल. वो है टाइप्स ऑफ लेंसेस. दैट इज द टाइप्स ऑफ लेंसेस. टाइप्स ऑफ लेंसेस. तो एक एक टाइप हम सीख लेते हैं. ओके, तो पहला टाइप. ओके, इसको बोलते हैं
डबल कॉन्वेक्स, क्या बोलने का, डबल कॉन्वेक्स, नहीं तो इसको कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स भी बोलते हैं, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स, दोनों भी साइड को कॉन्वेक्स है। ये क्या बन जाएगा, ऑफ कोर्स ये बन जाएगा डबल कॉनकेव, ये क्या बन जाएगा, डबल कॉनकेव, नहीं तो इसको कॉनकेव कॉनकेव भी बोलते हैं, और बाई कॉन्वेक्स भी बोलते हैं, बाई कॉन्वेक्स इसको बोलते हैं, इसको बाई कॉनकेव। ओके, ये बन गया। इसके बाद में एक साइड, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट लिया और दूसरा फाइनाइट लिया, कैसे बनेगा, तो ये बन जाएगा ऐसा, ओके, नहीं तो एक बन जाएगा ऐसा, ओके। इसको बोलते हैं प्लानो कॉन्वेक्स, और इसको बोलते हैं प्लेनो कॉनकेव। हाँ, वन ऑफ द आर इज इंफिनिटी, तो यहां का आर बन जाएगा इंफिनिटी। तो ये हम लेंस जो लेते हैं, ऐसा जो लेंस लेते हैं, तो यहाँ पे एक R1 और एक R2, तो R1 को आप इनफाइनाइट ले सकते हो, R1 विल बी इंफिनिटी, यहाँ पे भी R1 विल बी इंफिनिटी, ओके। इसके उल्टा, मतलब यहाँ पे कॉन्वेक्स है, यहाँ पे प्लेन है, नहीं तो यहाँ पे कॉनकेव है लेकिन यहाँ पे प्लेन है, तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स प्लेनो और कॉन्वेक्स प्लेन, कुछ भी बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं कॉनकेव प्लेनो। तो यहाँ पे R2 बन जाएगा इंफिनिटी, यहाँ पे भी R2 बन जाएगा इंफिनिटी, ओके। तो ये 1, इसको बोलते हैं 1, इसको बोलते हैं 2, इसको बोलते हैं 3। तो पहले में दोनों भी कॉन्वेक्स था, दोनों भी कॉनकेव था, ये तो इसको ठीक से बनाता हूं मैं थोड़ा सा दिखने के लिए आपको, ठीक है। यहाँ पे एक प्लेन था, एक कॉन्वेक्स था, एक प्लेन था, एक कॉनकेव था। यहाँ पे पहले कॉन्वेक्स था, बाद में प्लेन था, कॉनकेव था, बाद में प्लेन था, ओके। अभी यहाँ पे निकालते हैं अलग वाला, आगे वाला, तो आगे वाला क्या हो जाएगा, दैट वी विल सी नाउ। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे भी एक बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक बनाते हैं नंबर 4, ये ऐसा आता है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉनकेव कॉन्वेक्स, इसको क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स कॉनकेव, बराबर है। ये कॉनकेव ना, ऐसा कॉनकेव, तो इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स कॉनकेव, क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स कॉनकेव, और इसको क्या बोलेंगे, कॉनकेव कॉन्वेक्स। ये एक टाइप बनता है, ये क्या बन गया, कॉन्वेक्स कॉनकेव, ये बन गया कॉनकेव कॉन्वेक्स बन गया बेटा। यहाँ पे ऐसे भी बन जाता है, ये एक टाइप है, ये भी कॉन्वेक्स कॉनकेव है, ये भी कॉनकेव कॉन्वेक्स है, इनको बोलते हैं सिलिंड्रिकल लेंस। यहाँ पे थिकनेस होता है थोड़ा सा, ये अपने स्पेक्ट्स के लिए मोस्टली यूज करते हैं। दिस टाइप ऑफ लेंस
these are used mostly for producing this for developing the spectacles में most of the time ये भी होते हैं. ओके. और एक टाइप ऐसे भी आता है, एक लेंस होता है आपका और उसके अंदर और एक लेंस होता है, लेकिन ये अभी इन दिनों ज़्यादा यूज़ नहीं करते, अपने सिलेबस में भी उसका स्टडी ज़्यादा नहीं है. सो आई विल सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन ऑल द केसेस. ओके, देन विल गो फॉर द फर्दर स्टडी. ओके, ठीक है. Now we'll go to understand what actually means by the real depth and apparent depth. Real depth and apparent depth. तो सपोज यहाँ पे लेक है. ओके, तो लेक मैं निकालता हूँ, यहाँ पे वाटर है, ओके. सो ये बॉटम बन गया. और इस लेक में एक फिश है. देयर इज वन फिश इनसाइड अ लेक. सबको दिखाई दे रहा है एक फिश. तो क्या हो जाएगा, सपोज आई हैव टू ऑब्जर्व द फिश. आई हैव टू ऑब्जर्व द फिश. तो क्या हो जाएगा, रेज कमिंग फ्रॉम फिश. सपोज मैं एक ही रे कंसिडर करता हूं, आपको दिखने में दिक्कत हो जाएगा. सपोज ये ऐसे रे जा रहा है, रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम फिश. तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हाइपोथेटिकली नॉर्मल बनाते हैं. ओके, इसको नॉर्मल बोलते हैं. एंड इट इज गोइंग फ्रॉम, इसको डेंसर बोलते हैं, इसको रेयर बोलते हैं. ये वाटर है, इसको वाटर बोलते हैं, और ये एयर बोलते हैं. तो वाटर इज डेंसर मीडियम, तो वाटर से एयर में जा रहा है. सो रे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. रे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो बेटा ये बन जाएगा पूरा ये जो है, इसको मैं बोल सकता हूं डी आर. डी आर का मतलब क्या होगा बेटा, तो डी आर का मतलब लिखते हैं, डी आर मतलब रियल डेप्थ. एक्चुअल डेप्थ कितना है. ओके, तो यहां पे मैं इस एंगल को लिखता हूं I1, इसको बोलता हूं R1. इसको क्या बोलता हूं मैं, I1 बोलता हूं, दूसरे को बोलता हूं R1. तो बेटा क्या बन गया, अभी यहां पे मैं अगर हूं, हियर इज माय I, तो एज अ ह्यूमन टेंडेंसी आई एम नॉट रेडी टू गेट वॉट एवर द सीनरी इज देयर. माई ब्रेन विल थिंक जो रे स्ट्रेट आ रहा है, जो रे अपन का स्ट्रेट आ रहा है, तो इसको मैं एक वर्टिकल भी बना के लेता हूं. ये बन गया मेरा वर्टिकल. ओके, जो रे मेरा स्ट्रेट आ रहा है, तो मैं तो कंसिडर करूंगा द रे इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम हियर. उसको मैं डेविएट नहीं करूंगा, जहां पे वो आ रहा है, I will think that ray is coming from here. So I will find whatever the structure I will get, the same structure I will get. I will find that suppose the fish is here. तो ये क्या बन गया, अभी एक्चुअल पोजीशन ऑफ द फिश वो नीचे है, मेरे को वो ऊपर दिखाई दिया. ये मैं थोड़ा एग्रेसिवली ज्यादा ओवर एग्जैगरेशन किया है आपको समझने के लिए. तो मेरे को लगेगा कि ये इतना ही डेप्थ है. तो डी ए मेरा बन जाएगा अपरेंट डेप्थ. तो ये किस चीज पे डिपेंड करता है वो देखेंगे अभी. ओके, इसके लिए जो कुछ है यहाँ पे दिया हुआ
सेम मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ आपके लिए, बराबर। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, ये क्या बन गया, ये मेरा वर्टिकल बन गया, ये सरफेस बन गया, ये बॉटम बन गया। तो एक रे मैंने ऐसे कंसीडर किया, यहाँ से जाने वाला ये थोड़ा सा ऐसे आ गया, तो यहाँ पे वो उसको मैंने ऐसे कंसीडर किया, इसको बोला मैं टोटल डी आर, और इस डिस्टेंस को बोला मैं डी ए। ओके, डी ए का मतलब अपना अपरेंट डेप्थ, डी आर का मतलब अपना रियल डेप्थ। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं पूरा बना के लेता हूँ, ये नॉर्मल बन गया। ओके, ठीक है, तो ये बन गया मेरा I1, ये R1। तो the person will think that this is the angle, this is the angle। तो बेटा ये अगर हम फॉर्मुलेशन करेंगे, यहाँ पे फॉर्मुलेशन होता है, many different things are there, depending on that we are getting our result। तो आपको फॉर्मूला बनता है, आपको हरदम याद रखना है म्यू और एन, आप कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए अगर आप म्यू लेना चाहते हो then you can take mu, if you want to take n then n you can take, n is equal to real depth upon apparent depth। ओके, तो ये n के लिए कहां से कहां जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है, मतलब n12 लिखा तो n1 अपॉन n2 हो जाएगा, तो n हो जाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट विल बी dr अपॉन dA। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये फॉर्मूला से आपको बहुत प्रॉब्लम आता है सॉल्व करने के लिए। आई विल मेक इट 5 स्टार। तो यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक अबाउट दैट। इसका डेरिवेशन करने के लिए आपको नहीं है, डेरिवेशन इज नॉट देयर फॉर योर सिलेबस, बट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव मतलब ये आपका जेई है, आपका नीट है, सीईटी है, फॉर दैट पर्पज द प्रॉब्लम्स मे कम ऑन दिस टाइप्स। सो यू हैव टू, देन you are asked to find out real depth, apparent depth, what is the refractive index, relative refractive index, that you have to keep in mind। तो ये चीज का आप ठीक से नोट डाउन करो, so you will not have any problem while solving the problems। okay, I will suggest you to note this down। इसके बाद आता है आपका total internal reflection। after this what will come, that will be your total internal reflection। तो आप पूछेंगे सर ये रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, हमने तो रिफ्लेक्शन पूरा पढ़ लिया है, तो अभी इसके बीच में अभी फिर से रिफ्लेक्शन लेने का क्या जरूरत है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज द स्पेशल केस ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोला मैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज द स्पेशल केस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। स्पेशल केस, व्हाई आई हैव टोल्ड यू, because special case means in this case we will consider only the light going from denser to rarer and not light going from rarer to denser। So in this case we will consider the journey of light only from denser to rarer, not rarer to denser। So we will start with total internal रिफ्लेक्शन। तो इसमें क्या होता है, इफ द लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम, समटाइम्स आफ्टर सम मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस इट सीम्स दैट लाइट अगेन गोज इन द सेम मीडियम। तो ये प्रॉब्लम है, अगर आपका लाइट सेम मीडियम में फिर से जा रहा है, इफ योर लाइट इज अगेन गोइंग इन द सेम मीडियम, then that phenomenon we are calling it as a reflection। so that's why in the total internal reflection the same thing happens, that's why as if it is a refraction but it is taken as the total internal reflection। internally वो पूरा फिर से उसी मीडियम में चला गया, इसलिए उसको बोलते हैं internal reflection instead of refraction। okay okay, so important क्या क्या होना चाहिए। नंबर 1 we consider
light going from denser to rarer medium, rarer to denser नहीं यूज करेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। डेंसर टू रेरर, रेरर टू डेंसर का हम ध्यान में नहीं लेंगे, सो दैट विल नॉट बी आवर ड्यूटी। तो भी ठीक है, कर लेते हैं। तो सपोज ये मेरा डेंसर मीडियम है, ये कौन सा मीडियम है? सपोज मेरा डेंसर मीडियम है, इसको बोलते हैं डेंसर और इसको बोलते हैं रेरर मीडियम। तो पहला केस लेते हैं, इसको ठीक करते हैं जरा, बाउंड्री को अपन को समझ में भी आना चाहिए ना ठीक से, इसलिए बाउंड्री को ठीक करके लेते हैं, है ना बेटा? ओके, suppose my light is coming, इसको थोड़ा ब्लर कर देते हैं, ये इसका ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपन को देखना है लाइट कैसे जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा मैं ब्लर कर देता हूँ। यहाँ पे अगर अपना ब्लैक बोर्ड होता तो मैं थोड़ा सा उसको चौक से उसको कर देता, यहाँ से कुछ करने का सवाल ही नहीं होता है, तो थोड़ा सा इसको ये किया, लेकिन ये डेंसर है, ये रेरर पड़ेगा। तो सपोज लाइट ने एक एंगल पकड़ा, ऐसे आ गया, ओके। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? फर्स्ट ईयर आई विल ड्रॉ द नॉर्मल, बराबर बेटा, इसको बोलते हैं नॉर्मल। ये बन जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, तभी इट शुड गो हियर ना, बट इट इज गोइंग फ्रॉम रेरर डेंसर टू रेरर, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो थोड़ा ऐसे आएगा, ओके। और अगर मैंने इसको और नीचे लिया, मतलब एंगल बढ़ाया, सपोज, तो सपोज मैंने ऐसे एंगल बढ़ाया, तो ये और भी बढ़ जाएगा, एकदम ऐसा जाएगा, ये आर, ये आर। Now, if I will go on doing that, then I will get one case for which my angle of incidence will be such that the angle of refraction is 90 degree, means refracted ray is going along the boundary, और इसको बोलते हैं IC। IC का मतलब क्या है? क्रिटिकल एंगल। IC को क्या बोलेंगे? ऐसे कोई बोलने का क्रिटिकल एंगल। सो इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द रेरर मीडियम, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द रेरर मीडियम फॉर विच angle of refraction, for which angle of refraction is 90 degree, so it is called as critical angle. It is the angle of incidence in the denser medium, in the denser medium, not rarer, sorry, because light is going from denser to rarer na? So it is the angle of incidence in the denser medium for which angle of refraction is 90 degree, उसी को बोलते हैं हम critical angle. So what happens if the incident angle is still greater than the critical angle? So if my incident angle is still greater than the critical angle, ऐसा मैंने किया, then what will happen? Of course, now refracted ray will not graze on the boundary, it will go again in the same medium. So if I is greater than IC, refracted ray will again go in the same medium. इस फेनोमेनन को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। हियर क्या होता है? रिफ्रैक्टेड रे goes
along the boundary, और यहां पे क्या हो जाएगा अपना रिफ्रैक्टेड रे विल अगेन गो इन द सेम मीडियम. सो इस फिनोमेनन को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. द फिनोमेनन इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. सो वी कैन once again explain. So when the light comes from denser medium to rarer medium, the light ray bends away from the normal. So if we'll adjust the angle of incidence such that for that angle of incidence the refracted ray goes parallel to the boundary, means it is perpendicular to the normal, it means that it is at 90 degree. Okay, angle of refraction is 90 degree. After that, if we again increase that angle, so first for that angle we have named it as critical angle. So critical angle का definition हमने कैसे बना दिया? Critical angle के हमने बोला it is the angle of incidence in the denser medium. It is the angle of incidence in the denser medium for which angle of refraction is 90 degree. It is the angle of incidence in the denser medium for which angle of refraction is 90 degree. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बन गया, मतलब रे अपना बाउंड्री को अलोंग द बाउंड्री चला गया. सो क्रिटिकल एंगल इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री. नोट इट डाउन, आपको सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट चलेगा. ओके, सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, then the refracted ray again travels in the same medium and the phenomenon is called as total internal reflection. Let me once again explain. Total internal reflection, if the angle of incidence is greater than the critical angle, then the refracted ray goes in the same medium, travels in the same medium. So the phenomenon is called as total internal reflection. Internal मतलब डेंसर टू रेरर जा रहा है, फिर वो डेंसर में ही जाता है, अगेन अपने मीडियम में ही जाता है, इसलिए वो टोटल इंटरनल अपने अंदर अंदर ही, बाहर कहीं जा ही नहीं रहा, फिर से वापस आ रहा है. इस फिर से वापस आ रहा है इसीलिए उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं. लेकिन ये क्या है? इट इज अ स्पेशल केस ऑफ रिफ्रैक्शन. इट इज नॉट द रिफ्लेक्शन, इट अपीयर्स टू बी रिफ्लेक्शन. बन गया बेटा? सो इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो भी इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं. इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं. तो व्हाट इज द मैथमेटिकल कैलकुलेशन? तो अपन को मालूम है व्हाट वी नो. नंबर 1, लाइट गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेरर. ओके, देयरफॉर अप्लाइंग स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा बेटा? Applying Snell's law, what we can write? Sin I upon sin R is equal to n. लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस, सपोज मैंने IC किया तो R कितना बन जाएगा? 90 बन जाएगा. और लाइट गोइंग फ्रॉम 1 to denser to rarer, ओके, डेंसर टू रेरर, बराबर, तो ये n बन जाएगा, बराबर. सो इसको अगर हमने लिया 1 to 2, सो व्हाट इज n to 1? सो n to 1 बन जाएगा, दैट इज n2 अपॉन n1. तो यहाँ पे n2 n1 लिखने से अच्छा है लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है? डेंसर टू रेरर. तो यहाँ पे NRD लिखेंगे उसको, मतलब NR अपॉन ND. दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेरर मीडियम, बराबर. ये क्या बन जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेरर मीडियम. वेयर एज ये बन जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम. ये बन गया पूरा. तो यहां पे कैसे करेंगे? यहां पे ये बन जाएगा IC, यहां पे बन जाएगा 90, ये बन जाएगा NRD. तो क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा बेटा अपना, कितना बन जाएगा? वेट फॉर अ व्हाइल.
थोड़ा पानी पी लेते हैं, सॉरी फॉर इंटरप्ट। ठीक है, चालू करते हैं अपना। तो ये क्या हो गया, ये बन जाएगा साइन आई सी, थोड़ा बड़ा लिखता हूं आपको लिखने के लिए, साइन 91 होगा इज इक्वल टू एन आर डी। ओके, तो यहां पे सपोज मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे चला गया, सॉरी ये ऐसे चला गया, तो क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल टू आई सी। ओके, इसको अगर 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन आई सी अपॉन 1 इज इक्वल टू n टू 1, दैट इज n2 अपॉन n1। तो यहाँ पे nrd, तो क्या मतलब होगा, साइन आई सी इज इक्वल टू nr अपॉन nd, where nr is the refractive index of rarer medium, whereas nd is the refractive index of denser medium। वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान में रखना है, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, समझ गए। सो दैट वाज अबाउट द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नाउ आफ्टर दिस, इसके बाद हम पढ़ने जाएंगे एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसका एप्लीकेशन क्या है, इट हैज मेनी एप्लीकेशंस। ओके, इट हैज मेनी एप्लीकेशंस। तो पहले वाला एप्लीकेशन हम बताते हैं, तो यहाँ पे टाइटल लिख देते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फर्स्ट एप्लीकेशन, ऑप्टिकल फाइबर। आप सब लोगों ने मोबाइल कम्युनिकेशन पढ़ा है, तो फाइबर ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल फाइबर को लाइट पाइप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइट पाइप। ये ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, तो आप किसी ने देखा होगा, थोड़ा भी चाइनीज चीजों पे बैन है, लेकिन किसी के घर में एक ऐसा ये होगा, एक डिस्क होता है, अगर आपको मालूम है तो देखो, यहाँ पे एक ऐसा होता है और उसके ऊपर ऐसे बहुत सारे छोटे 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 पाइप्स होते हैं, हाँ, और ये जब चालू करते हैं तब यहाँ पे छोटा छोटा स्टार दिखता है ना, छोटा छोटा लाइट फ्लैश होता है, आपने देखा होगा। तो इसमें ये जो है, ये वाला, ये होता है ऑप्टिकल फाइबर। मतलब क्या, इट इज द टाइप ऑफ पाइप थ्रू विच लाइट कैन पास विदाउट लॉस ऑफ इंटेंसिटी। तो कैसे होता है, सपोज, तो यहां पे मैंने कंसीडर किया, ये ऐसा कंसीडर किया, तो यहां पे क्या होता है, ऐसे उसमें दो मटेरियल मिक्स होते हैं, एक को बोलते हैं कोर और एक को बोलते हैं क्लैड। क्लैड मीन्स क्लैडिंग, एक को बोलते हैं कोर और दूसरे को बोलते हैं क्लैडिंग, क्लैड और क्लैडिंग। तो there is a difference in the refractive index of core and cladding. There is a difference between the refractive index of core and cladding. तो कैसे दिखता है, दिखाता हूँ। सपोज मैं पाइप के अंदर में दिखा दिया आपको, यहाँ से पाइप चालू है, तो ये दो लेयर बन जाता है, दोनों भी पॉइंट को, मतलब जैसे दो पाइप एक दूसरे में आप अगर डाल दो, हाउ दिस लुक्स। ओके, तो व्हाट हैपेंस, पहले तो यहाँ से लाइट एंटर करता है, तो यहां पे क्या होता है कि ऑटोमेटिकली इतना ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एडजस्ट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज सो एडजस्टेड, आपको सब लिख के भी देता हूं, दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज सो एडजस्टेड दैट लाइट सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो यहां से ये फिर से रिफ्लेक्ट हो जाता है, यहां पे आ गया,
तो फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे एडजस्ट किया है कि ये I इज ऑलवेज ग्रेटर देन IC, यहाँ पे भी I इज ग्रेटर देन IC, फिर से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा यहाँ पे फिर से, तो वो आगे जा ही नहीं सकता, तो यहाँ पे ऐसे चला गया, यहाँ पे बाहर निकल गया। ओके ओके, वी विल गेट द लाइट विदाउट लॉस ऑफ इंटेंसिटी, I ग्रेटर देन IC, यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, I ग्रेटर देन IC, और यहाँ पे भी बन जाएगा I ग्रेटर देन IC। तो each time the light suffers the refraction, it will get totally internally reflected. So each time whenever the light suffers refraction, it will have total internal reflection, and we will get this light, incident light, the same as the output. तो ये कहाँ पे यूज करते हैं, तो ये छोटा छोटा वाला पाइप होता है, एकदम छोटा छोटा वाला। आई विल सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन, ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ ये आप अपने दिमाग में रखो, क्या बोल रहे हैं, ये क्या एप्लीकेशन है। तो ये कैसे होता है, तो ये मोस्टली वी आर यूजिंग द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर इज मोस्टली यूज्ड इन एनकोडिंग and decoding the signal. सिग्नल प्रोसेसिंग होता है, उसमें एनकोडिंग डिकोडिंग में सिग्नल करते हैं। क्या करते हैं, दे यूज द बंडल ऑफ OFC। OFC मतलब ऑप्टिकल फाइबर केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल का बंडल होता है। तो सपोज मेरे को यहां से सिग्नल भेजना है, सो दिस इज माय ट्रांसमीटर, ओके, ट्रांसमिटिंग हाउस, इसको बोलता हूं मैं ट्रांसमिटिंग हाउस। तो यहां पे सपोज मेरे को सिग्नल भेजना है L, सपोज L मतलब एक, आपको ये करता हूं, ये बंडल है मेरा, कितने का है, 4 4 4 16 का बंडल है। यहां पे वो यूज होता है कंसेप्ट बिट बाइट। तो बाइट वगैरह होता है ना, बाइनरी देन हेक्साडेसिमल, ये जो नंबर है 0 1, 0 मीन्स ऑफ, 1 मीन्स ऑन, तो यहां से वो सिग्नल भेजते हैं। सपोज मैंने सिग्नल तैयार किया, ऐसे किया, मतलब ये तीनों को मैंने लाइट भेजा, तो ऐसे सिग्नल तैयार किया मैंने पूरा। तो नंबर 2 3 एंड 14 15 छोड़ के सबको मैंने ग्लो कर दिया, इसमें लाइट नहीं फेंका है। तो ये मेरा कुछ एनकोड किया, सिग्नल को मैंने एनकोड किया, इसमें इंफॉर्मेशन है, इसको बोलते हैं एनकोडिंग। इसको क्या बोलेंगे हम, एनकोडिंग। और इसी को अभी ये केबल को सब मोड़ के इकट्ठा किया मैंने, सब इकट्ठा करके ये मैंने पूरा केबल बना दिया। तो यहां से वो केबल चलता जाएगा, ओके। बीच में सिग्नल लॉस नहीं हो, इसके लिए रिपीटर्स होते हैं, टू अवॉइड सिग्नल लॉस। फिर से वो ये करते हैं और ये सिग्नल पहुंचता है, फिर से जाली में पूरा फाइबर केबल करके यहां पे पहुंचता है। आपका कोडिंग उसका देखने के लिए पहुंचता है। तो यहां पे फिर से 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यहां पे फिर से उनको वैसे ही अरेंज करते हैं जैसे यहां पे अरेंज किया था। नंबर 1 केबल नंबर 1, नंबर 2 नंबर 2, नंबर 3 नंबर 3, नंबर 4 नंबर 4, ऐसा करके उनको सेम अरेंज करते हैं। तो मेरे को ऑफ कोर्स क्या मिलेगा, जो नंबर 1 को ब्लिंक किया था, नंबर 1 को ब्लिंक हो गया, 2 का ब्लिंक नहीं था, 3 का ब्लिंक नहीं था, 4 का ब्लिंक था, ये ब्लिंक है, ये ब्लिंक है, ये ब्लिंक है, सब ब्लिंक है,
ये दोनों छोड़ के बाकी सब ब्लिंकिंग है, तो ये बन गया मेरा सिग्नल, इसको बोलते हैं सिग्नल। तो सिग्नल प्रोसेसिंग में एनकोडिंग एंड डिकोडिंग, तो इसको बोलेंगे हम, ये जो हाउस बनाया है इसको बोलेंगे हम डिकोडिंग हाउस, रिसीवर बोलते हैं इसको, और इसको डिकोड करते हैं रिसीवर। यहाँ पे ये जो रिसीवर, इसको सिग्नल डिकोडर बोलते हैं, इसको डिकोडर, इसको बोलते हैं एनकोडिंग, मतलब ये एनकोडर होता है। तो बीच में जो यूज करते हैं वो करते हैं फाइबर ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल फाइबर। तो इन दिस वे ऑप्टिकल फाइबर इज वाइडली यूज्ड इन द मोबाइल कम्युनिकेशन। आप अगर बॉम्बे गोवा एक्सप्रेस हाईवे पे जाओगे, मुंबई गोवा एक्सप्रेस हाईवे, देयर आपको एक ऐसा ये मिलेगा, ऐसा लिखेंगे हो, ऐसा लिखते हो, ऐसा एक ऑरेंज कलर का आपको माइलस्टोन मिलेगा, उस पे लिखते हैं OFC और इधर कुछ लिखा हुआ होता है। ओके, सो दैट इज द स्पॉट फॉर द ऑप्टिकल फाइबर केबल। आर गेटिंग माय पॉइंट? अंडरग्राउंड होता है, अंडरग्राउंड होता है, ओवरग्राउंड भी होता है, मतलब ऊपर भी जाता है, एक बड़ा वाला बंडल होता है, पैकिंग होता है। तो मोबाइल कम्युनिकेशन में ये बहुत मायने रखता है। It plays a vital important role in the mobile communication। जो सैटेलाइट से सिग्नल मिलता है, एक्चुअली क्या होता है, मैं ज़्यादा भी इसके ऊपर एम्फसाइज नहीं कर रहा हूँ, ये अर्थ है अपना, ये अर्थ का हॉरिजॉन है, तो यहाँ पे जो सैटेलाइट्स होते हैं ये रिसीव, वो उनके सिग्नल ये टावर अपने रिसीव करते हैं, जो सैटेलाइट अपना होता है उसमें से ये रिसीव करते हैं, सिग्नल्स रिसीव करते हैं, और रिसीव करने के बाद यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे ये तो रिसीवर रिसीव करता रहता है, तो रिसीवर के नीचे, तो ये अपना रिसीवर है और ये ट्रांसमीटर जो कुछ है, उनके नीचे एनकोडर एंड डिकोडर दोनों भी होते हैं। और वो सिग्नल आने के बाद, वो सिग्नल जो आएगा वो कैच करते हैं, यहाँ पे वो सिग्नल को लेते हैं, यहाँ से बीच बीच में उनके स्टेशन रहते हैं, वहां पे वो सिग्नल जाता है, और बीच में सिग्नल को लेके जाने के लिए, टू कैरी द सिग्नल, द ऑप्टिकल फाइबर इज वाइडली यूज्ड। और भी उसके फिनोमेनन है, और भी उसके एप्लीकेशन है, दोज एप्लीकेशंस वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज मायरेज इज देयर। मायरेज, मिराज भी बोलते हैं उसको, इन हिंदी उसको मृगजल बोलते हैं, और मराठी में मृगजल, मतलब रेगिस्तान में, अगर रेगिस्तान नहीं तो जंगल में, हाँ, your bear is going, deer not beer, deer is going, harin, so if the deer is going, so somewhere we will find the false existence of water। तो डियर को लगता है वहां पे वाटर है, इसलिए भाग जाता है, आगे जाता है, बट when the deer reaches that point, deer finds there is no water, आगे के लिए उसको दिखता है, फिर से हाँ रे हाँ उधर वाटर है, तो फिर से भागता है, और भाग के मर जाता है पानी की तलाश में। This is called as मायरेज और मिरेज और मिराज, मृगजल बोलते हैं उसको। So वो भी the phenomenon optical, total internal reflection. So that we will see in the next lecture. So I hope you have understood everything whatever I have taught. So I will suggest you to note each and every point, to revise each and everything. At last, stay home, stay safe, stay tuned with physics. Okay. Best of luck for your further studies. Bye bye.